Hi everyone, this is CA Shubhi Agarwal and today I will be covering a topic from financial reporting, that is chapter 11, accounting and reporting of financial instruments. सो इस इंडेस में अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो चैप्टर है बेसिकली हम इसकी बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हम 3 इंडेस कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा इंड AS 32, that is financial instruments presentation. Then IND AS 109, that is financial instruments, और फिर आ जाएगा IND AS 107, that is financial instruments disclosure. तो बेसिकली हम इन 3 IND AS की बात करेंगे इस चैप्टर में। IND AS 32, that is financial instruments presentation, then IND AS 109 financial instruments, and then IND AS 107 financial instruments disclosures. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा IND AS 32 है, IND AS 32, that is financial instrument presentation। इसमें हम किस किस चीज़ की बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे definitions, classification as liability or equity, then we will talk about compound financial instruments, then offsetting financial asset and financial liability, then presentation of interest, dividends, losses and gains on financial liability and equity। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं दैट वी विल बी कवरिंग अंडर IND AS 32, दैट इज़ प्रेजेंटेशन। और
उसके अलावा जो है हमारा इंड AS 109 फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें भी हैं चीज़ें जो हम कवर करेंगे। उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे एक बार हम देख लेते हैं। फिर इस चैप्टर में कॉम्प्रिहेंसिवली तीनों को लिया गया है। इंड AS 109 फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ financial assets and financial liabilities, फिर measurement of financial assets and financial liabilities and presentation of gains and losses on financial instruments. फिर we will be talking about impairment, recognition and derecognition of financial assets and financial liabilities, and then finally derivative and hedge accounting. तो ये चीज़ें हैं जो कवर हुई हैं इंड AS 32 और इंड AS 109 में। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के यूनिट 1 की, दैट इज़ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, स्कोप एंड डेफिनेशंस। ठीक है, तो एक बेसिकली एक इंट्रोडक्शन कवर करते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं बेसिकली फ़िनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। अब जैसे फ़िनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत टाइप के फ़िनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि फ़िक्स रिटर्न दे सकते हैं, लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और दे कैन गिव residual share in the net assets like equity. Several types of instruments are there, such as convertible preference shares, FCCBs, foreign currency loan, debt syndication arrangements, etc. तो ये बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और बेसिकली ये जो नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में हम डील करेंगे इंड AS में। तो जैसे कि आपको पता है जो ये इंड AS हैं, दे आर लार्जली अलाइंड विद IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, which is reported at the international level। और इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है that is based on substance of the arrangement between the parties rather than the legal form। तो इसमें जो हमारा क्लासिफिकेशन रिकॉग्निशन जो भी होगा that will be based on substance over form। substance over form का मतलब उसको देखा जाएगा कि वो एक्चुअली में क्या है, उसका सब्सटेंस क्या है, ना कि उसका लीगल फॉर्म क्या है। लीगल से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका जो एक्चुअल सब्सटेंस होगा उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे इन अकॉर्डेंस विद दिस इंड AS। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि फ़िनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। What are basically financial instruments? तो
A financial instrument, this is as per Ind AS, is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. तो बेसिकली ये है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस इंड AS. इट सेज a financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity. एक entity के लिए it will be a financial asset and a financial liability या फिर equity instrument of the another entity. तो एक entity के लिए financial asset and दूसरी entity के लिए is a financial liability or equity instrument. Now, contract, we all know, we have already read in the business laws what is a contract. According to this Ind AS, contract को कैसे define किया गया है. Here a contract refers to an agreement between two or more parties that has clear economic consequences. And which parties usually are bound to adhere, usually because the agreement is enforceable by law. तो इसमें जो तीन चीज़ें जो मेन निकल के आए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. पहला तो ये होता है अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज़. दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट होता है. दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए. सेकंड, इट हैज़ क्लियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. क्लियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके. अगर देर आर नो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देन इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस इंड AS. एंड थर्ड इज़ इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ. जो लॉ है दैट इट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, मतलब कि इसमें लीगल जो एंगल है वो इन्वॉल्व हो सकता है. फिर ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट्स में बी इन राइटिंग और इट मे टेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. एंड अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एसेट या लाइबिलिटी दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एंड विच इज़ नॉट अ इन कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर, वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फाइनेंशियल एसेट नहीं हो सकता है. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्सेस, दे आर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट, हेंस इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी, इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. Second, if we consider constructive obligation, which is defined in Ind AS 37, that is provisions, contingent liability and contingent asset that do not arise from a contract, hence they are not treated as a financial liability. Okay. तो financial instruments में बेसिकली दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स सच एज रिसीवेबल्स, पेबल्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट
और दूसरे आते हैं डेरिवेटिव। such as financial options, futures and forwards, interest rate swaps and currency swaps। ठीक है, तो ये हो गया फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ फिनेंशियल एसेट। फिनेंशियल एसेट क्या होता है? फिनेंशियल एसेट इज़ एनी एसेट दैट इज़ कैश, या तो वो कैश होगा या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, या फिर अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्चुअल राइट? टू रिसीव कैश और अदर financial asset from another entity or to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially favorable to the entity। और चौथा, a contract that will or may be settled in entities own equity instruments। तो बेसिकली financial asset is any asset that is either cash, an equity instrument of another entity, a contractual right to receive cash or other financial asset from another entity, or to exchange financial asset or financial liability with another entity under conditions that are potentially favorable to the entity, या फिर a contract that will or may be settled in entities own equity instruments, that is and is a non-derivative for which entity is or may be obliged to receive a variable number of entities own equity instrument। A non-derivative for which the entity is or may be obliged to receive a variable number of entity own equity
instruments or a derivative that will or may be settled other than by exchange of fixed amount of cash or other financial asset for a fixed number of entities' own equity instruments. अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे तो चीज़ें विल बी मोर क्लियर. अभी दे माइट नॉट बी साउंडिंग क्लियर टू यू. सो अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल एसेट बोलते किसको है. अगर फाइनेंशियल एसेट है तो या तो वो कैश होगा, कैश इज़ कंसिडर्ड अ फाइनेंशियल एसेट, या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, दूसरी एंटिटी का कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एसेट. तीसरा है अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट. एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी. हमारे पास एक राइट है कि हम किसी और एंटिटी से कैश या कोई अदर फाइनेंशियल एसेट रिसीव कर सकते हैं, दैट, या फिर टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी. हम एक्सचेंज कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल. पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज़ पोटेंशियली फेवरेबल. हमारे लिए वो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए. और फिर और क्या आता है फाइनेंशियल एसेट में? अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन एंटिटी ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एंटिटी सेटल करेगी अपने खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, and that is a non-derivative for which entity is or may be obliged to receive a variable number of entities own equity instruments, or a derivative for which the entity is or may be obliged a derivative that will or may be settled other than by exchange of fixed amount of cash or other financial asset for a fixed number of entities own equity instrument. अब आगे ये बोलता है NDS, फॉर दिस पर्पज एंटिटीज़ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डू नॉट इंक्लूड पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स classified as equity instruments, instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of net assets of the entity on liquidation, and are classified as equity instruments or instruments that are themselves contract for future receipt or delivery of entity's own equity instrument. ठीक है. अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं किसको हम फाइनेंशियल एसेट्स बोलेंगे. ठीक है. इन्वेस्ट, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डिबेंचर्स. क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, हमारे पास है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश. कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है इस केस में, दैट्स वाई इट इज़ अ फाइनेंशियल एसेट. सेकेंड है लोन्स एंड रिसीवेबल्स. लोन्स में भी वही है, वी हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, हेंस दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट. डिपॉजिट
given. Now this also contains a contractual right to receive cash, hence this is also a financial asset. Fourth है trade and other receivables. Do we have a contractual right to receive cash? Yes, we do have a contractual right to receive cash. Hence, this will also be a financial asset. अगला आ जाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में. इसमें पूछने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि जो कैश है उसको दैट वी विल बी कंसिडरिंग एज फिनेंशियल एसेट. देन आ जाता है बैंक बैलेंस. Bank balance is a form of cash and it also contains a contractual right to receive cash. Hence, this is also a financial assets. Okay. अगला है investments in equity shares. क्या ये financial asset है? अभी हमने जो financial asset की definition देखी थी उसमें हमने specifically देखा था कि equity instruments of another entity are considered as a financial asset, hence it is a financial asset. अब आगे है perpetual debt instruments like bonds, debentures, जो perpetual nature के होते हैं. तो क्या ये financial asset है? Now such instruments provide the contractual right to receive interest for an infinite future period and right to return of capital under the terms that make it very unlikely or very far in the future. ठीक है, इसमें जो है contractual right है to receive interest for indefinite future period of time, और जो राइट ऑफ टू रिटर्न ऑफ कैपिटल है वो बहुत ही अनलाइकली होता है या बहुत ही फार होता है फ्यूचर में. तो इसमें वो कंडीशन प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव पेमेंट. तो हैंस इट इज़ अ फाइनेंशियल एसेट. अब देखते हैं अगला, दैट इज़ इन्वेंट्री प्रॉपर्टी, जो फिज़िकल एसेट्स होते हैं, P&D. क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? Now, control of all these assets do not create a present right to receive cash or other financial asset. Hence, this will not be a financial asset. Right to use assets, that is lease vehicles, etc. Now, the control of such assets does not create a present right to receive cash or other financial asset. लीज व्हीकल्स हैं तो हमारे पास कोई प्रेजेंट राइट नहीं है कि हम वी विल बी एबल टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट. हेंस दिस विल नॉट बी अ फाइनेंशियल एसेट. अगला देखते हैं इंटैंजिबल्स. इंटैंजिबल्स दैट इज़ लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, etc. Now, the control of such assets does not create a present right to receive cash or other financial asset. Hence, this will also not be a financial asset. अगले आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट. अब these instruments provide future economic benefit in the form of goods or services rather than right to receive cash. इसमें हमें कोई कैश नहीं मिल रहा है, इसमें हम फ्यूचर पेमेंट अभी करके हम फ्यूचर गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं. इस वजह से दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ फाइनेंशियल एसेट. अब अगला है एडवांस गिवन फॉर गुड सर्विसेज. नाउ सेम जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में था, दीज इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज rather than right to receive cash. Hence, this will not be considered as financial asset. Okay. Now, for better clarity, let us solve one illustration. A Limited makes sales of goods to customers on credit for 45 days. So now there is A Limited.
he makes sale of goods to customers on credit for 45 days. Now the customers are entitled to earn a cash discount of 2%. 2% CD if the payment is made before 45 days and an interest at the rate of 10% per annum is charged for payments which are made after 45 days. Evaluate whether such trade receivables are financial asset or not. What do you think? Are these trade receivables a financial asset according to the definition which we have just read? This is pretty simple. See, a financial asset is an asset where there is a contractual right to receive cash or other financial asset from another entity. Now in this case, A has the contractual right to receive cash or in the form of bank balance from its trade receivables which are recorded in the books of accounts after the expiry of credit period of 45 days or earlier after passing the discount of 2% per annum. Hence, this trade receivables would meet the definition of financial asset and would qualify. Okay, now let's see another example. Z Limited makes sale of goods to customers on credit. Now this is Z Limited. It makes sale of goods to customer on credit. Goods are carried in large containers for delivery to the dealer's destination. All dealers are required to deposit a fixed amount of 10,000 as security for the containers. Okay, तो 10,000 रुपये एज सिक्योरिटी ये डिपॉजिट कर देगा, विच आर रिटर्न ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टर्मिनेट्स. ठीक है, जैसे टर्मिनेट होगा तभी वो रिटर्न होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, अदरवाइज वो नहीं होगा. द डिपॉजिट्स कैरी 8% पर एनम विच इज़ पेबल ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट terminates. Now if the containers are returned by the dealer in the broken condition or any damage is caused, an appropriate adjustment shall be made from the deposit at the time of the settlement. ठीक है, वो उसमें से जो भी डैमेज होगा उसका पैसा काट के बाकी जो है उसको दे देगा. नाउ इन डिपॉजिट्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे? इज़ इट अ फाइनेंशियल एसेट या फिर ये क्या है? नाउ हमें पता है फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन क्या है. फाइनेंशियल एसेट इज़ एन एसेट वेयर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव cash or other financial asset from another entity. Now जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं दे आर रिसीवेबल इन कैश एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बिटवीन द डीलर एंड द कंपनी, हेंस दे मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट. अब इसके आगे है फाइनेंशियल लायबिलिटी जो कि आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. In that also I'll be first covering the definition and then we will be going on with the examples. So let's revise whatever we have done so far today. So basically आज में हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. हमने इसमें देखा बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इंड एस में इसको कवर करेंगे. इंड एस 32, इंड एस 109 एंड इंड एस 107. इंड एस 32 में हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, जैसे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी और इक्विटी, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऑफसेटिंग फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, लॉसेस एंड गेन्स ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी. फिर हमने देखा इंड एस 109 में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी, प्रेजेंटेशन, इम्पेयरमेंट, रिकॉग्निशन, डेरिवेटिव एंड हेज अकाउंटिंग. फिर हमने देखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, देखा व्हाट इज़ द स्कोप एंड डेफिनेशन. इसमें हमने देखा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी एंड डेट फॉर्म में. और इसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन सब्सटेंस रादर दैन दी फॉर्म. अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हमने डेफिनेशन देखी थी जो कि है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज़ एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. फिर हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली agreement between 2 or more parties which is having
इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। फिर हमने देखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स विच इंक्लूड रिसीवेबल्स, पेबल्स, इक्विटी एक्सेट्रा, एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि होते हैं जैसे फाइनेंशियल ऑप्शंस, फ्यूचर्स, जो कि डिराइव करते हैं अपनी वैल्यू प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स से। देन हमने देखा फाइनेंशियल एसेट्स, उसकी डेफिनेशन देखी। व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स, डेफिनेशन में देखा कि एनी एसेट दैट इज़ कैश or equity instrument of another entity, a contractual right to receive cash or other financial asset from other entity, or to exchange financial asset or financial liability with another entity under condition that are potentially favorable to entity, or फिर a contract that will or may be settled in entity's own equity instrument and is a non-derivative for which the entity is or may be obliged to receive a variable number of equity owned instruments, or a derivative that will may be settled other than exchange of fixed amount of cash or other फाइनेंशियल एसेट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ एंटिटीज़ ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें हमने देखा कि क्या फाइनेंशियल एसेट कंसिडर होगा और क्या फाइनेंशियल एसेट कंसिडर नहीं होगा। एंड में हमने दो इलस्ट्रेशंस देखे जिसमें हमने पता किया कि वेदर इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एसेट और नॉट। नाउ नेक्स्ट विल बी फाइनेंशियल लायबिलिटी दैट आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।